Good morning all of you. As you know that myself Professor Rahul Dasarwar, owner and director of Ramaiah Institute Nanded, right? So students, welcome all of you here. In previous classes we have studied the basics of the science, right? And we are carry on these basic concepts, right? In some few days also we will go through it, right? So students, I request you see the all videos on our YouTube channel and try to understand the videos, okay? The concept of the topics which you have getting any trouble, right? You can drop your message. We will try to solve your doubts, okay? Next, students, if you are new on this platform, get connected as early as you can, okay? Right? We have started our batches very soon, okay? As you know that we are starting this platform for especially the medium class level students, okay, which needs some more efforts as compared to other students, okay. As you know that the main thing is that we have to develop the medium class level students, right? So be alert, be cautious, okay, आप एक्टिव रहो, okay. Now we will start our journey. अभी आपके काम को स्टार्ट करेंगे, right? So students, you know that in previous lectures of 10th class we have started the heating effect of electric current chapter. In that chapter we have completed approximately 3 to 4 points from your syllabus, right? Now we will pick up our journey, okay? अभी अपन जो अपनी जर्नी को स्पीड देंगे अभी, राइट? कुछ लेक्चर्स का टाइम ज्यादा हो जाएगा, राइट? कुछ लेक्चर्स थोड़े से वास्ट होंगे, राइट? बट वी विल मैच इट एनीवे, राइट? बिकॉज वी आर स्टैंडिंग हियर टू डू समथिंग बेस्ट, राइट? टू डेवलप वन स्ट्रक्चर which is helpful for our students, right? So students, please don't waste the time. We will start our journey, okay? Keep it up, okay? And best wishes as always with you, and be active, be confident, okay? Let's take a fresh page and put the heading of 9th class current electricity, right? Current electricity. Current electricity. ओके, देखिए अभी इन बेसिक थिंग्स में अपन करंट और इलेक्ट्रिसिटी में का डिफरेंस देखे थे, रिलेशंस देखे थे, ओके? व्हाट आर द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, राइट? नाउ we have to go actually with our syllabus, okay? In your 9th standard textbook they have given some concepts, right? As you know that I will just revise within 2 minutes, okay? See, as you know that any material contains electrons. हर एक materials में electrons होते हैं, right? These electrons are moving in random motion initially, okay? Due to the connection of battery, these electrons get aligned, okay? Indirectly current will be flow there, okay? After connection of battery, current will be flow, okay? Due to that there is the potential difference also generated now, okay? तो देखो here due to the connection of battery,
potential difference is generated right. Potential, draw the diagram. Potential difference is generated. Diagram draw करेंगे. Draw this diagram. We will discuss the next point also now, just now. See, due to the connection of battery, potential difference is generated. क्या होता है? बैटरी कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. तो व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट. जस्ट यू हैव टू कीप इट योर माइंड हियर. पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? फुल फॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोलते हैं? आई विल टेल यू वन स्मॉल एग्जांपल. इफ टेक टू बीकर्स, ओके, वन बीकर इज एट height and next beaker is at lower height, right? तो देखो ये यहां तक पानी इसमें फिल हुए वाला है, ओके, यहां तक पानी है उसमें. ए बीकर कह सकते हैं इसको अपन, ओके. और इसमें क्या होता है? यहां तक पानी है, राइट? इसको बी बोल सकते हैं अपन, राइट? तो अभी देखो द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स, ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों के लेवल में डिफरेंस है ना? तो देखो इसकी वाटर लेवल यहां तक है, इसकी वाटर लेवल यहां तक है, राइट? तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस को कैसा डिफाइन कर सकते हैं अपन? ओके, उसका कोरिलेशन देखो. पोटेंशियल डिफरेंस समझा क्या आपको? राइट? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, ऐसा कह सकते हैं अपन, राइट? इन इलेक्ट्रिकल कन्वीनियंस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के रिलेशन में अपन क्या कह सकते हैं उसको? डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, राइट? तो दिस इज द अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? दो लेवल्स में जो डिफरेंस है उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. तो ये जब यहां से पानी नीचे आ जाएगा, राइट, हायर लेवल से नीचे लोअर लेवल में पानी जब आएगा तो ये कहां तक आएगा? उसकी एक सेम लेवल होने तक, राइट? ये इसकी लेवल यहां तक आ गई, इसकी लेवल यहां तक आ गई, तो ये दोनों सेम लेवल तक आ गए कि वो रिलैक्स हो जाते, राइट? मीन्स वो वहां पे क्या हो जाता? लेवल मैच हो जाती. एग्जाम्पल लो ना, घर के टाकी का सेम है, एक टाकी में का पानी दूसरे टाकी में जाना है तो अपन क्या करते? सेम लेवल पाइप लगा के आउटलेट से दूसरे टाकी में पाइप छोड़ देते. तो क्या होता है? वो दोनों सेम लेवल तक आने तक पानी ट्रांसफर होता, बाद में स्टॉप हो जाता, राइट? दिस इज अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. अभी आपको क्या देखना है? पोटेंशियल डिफरेंस समझा अभी? तो अभी देखो रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं. रेजिस्टेंस का फंडामेंट यहाँ पे क्यों आया? देखो, जब एक मटेरियल से करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ करंट, जब किसी कहीं करंट फ्लो होता है ना तो उसको अपोजिशन करने वाला भी रहता. दैट अपोजिशनर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, राइट? देखो करंट फ्लो हो रहा है, करंट को अपोज कौन कर रहा है? जो करंट को अपोज कर रहा है उसको क्या बोलेगा? रेजिस्टेंस, राइट? तो देखो अपन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखेंगे अभी. रेजिस्टेंस किसे बोलते? देखो अभी एक मेटल का वायर है, राइट? उसकी लेंथ है L, एरिया है A. तो रेजिस्टेंस मींस कितना अपोज करता है, किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट? तो इनडायरेक्टली दो इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं अपन? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, राइट? R ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. Generally, we can't consider the directly proportionality sign. We have to consider the equality sign. Okay? Equality sign लेने के बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है रो, राइट? तो रो इंटू L बाई एज इट इज. तो ये जो कांस्टेंट है रो, राइट, ये रो कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, राइट ना? इसको अपन रेजिस्टिविटी बोलते हैं. तो ये समझा अभी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का, राइट? अपन नेक्स्ट बाद में क्या देखेंगे? अभी बाद में अभी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपना, रेजिस्टेंस की कितने टाइप्स है? रेजिस्टेंस की मींस कौन सी टाइप्स में अपन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं? सी, टाइप्स ऑफ
कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपन दो टाइप्स में कर सकते, कनेक्ट कर सकते, राइट? कौन सा है? एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक तो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? सीरीज और पैरेलल, ऐसे दो कॉम्बिनेशन में अपन उसको देखो। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसा कनेक्ट करते हैं, राइट? रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के दो टाइप्स है। कौन से? रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन इज देयर, राइट? तो देखो अभी समझ लो अच्छी तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को 5 मार्क्स के लिए आता, राइट? तो देखो ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट है, कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मींस एक दिमाग में याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन आया कि स्ट्रेट लाइन में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते, राइट? ये रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट कैसी होती? एक लाइन में अरेंजमेंट होती है। विच कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? तो यहाँ R1, R2, R3, राइट? तो 3 रेजिस्टेंस ऐड करें अपन, ओके? और अक्रॉस द रेजिस्टेंस we have to attach voltmeter also, okay? Potential drop we have to measure, na? That's why across R1 V1 is there, across R2 V is there, across R3 V is there, समझा? तो देखो V1, V2, V3 ऐसा बोल सकते हैं अपन। ये क्या है? वोल्टमीटर से, which measures the voltage drop between the R1, R2, R3, right? As soon as you are passing the source of energy or battery, तो क्या होता है यहाँ पे? कुछ वोल्टेज ड्रॉप अरेंज होता है, राइट? वो वोल्टेज ड्रॉप अपन वोल्टमीटर के जरिए से कैलकुलेट करते हैं, राइट? देखो अभी यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको? जो करंट है, करंट अक्रॉस दिस, राइट? ये करंट क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरिंग क्या है? वेरिंग क्या है? फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे, वो वेरिंग है, राइट? क्योंकि कैसा है देखो, R1 को एक अटैच किया है, R2 एक अटैच किया है, और R3 को एक अटैच किया है, राइट? मींस सेपरेशन है। तो यहां अलग होगा कुछ वैल्यू, यहां उसकी वैल्यू अलग होंगी, यहां अलग होंगी, राइट? तो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरिंग है, राइट? समझे? ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर हियर, यू हैव टू फोकस, ओके? दिस कंसेप्ट यू हैव टू हेल्पफुल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स ऑल्सो, राइट? इन आवर फ्यूचर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। नेक्स्ट जो आप 10th में, 11th, 12th में, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? माइनर कंसेप्ट आप क्लियर कर लो अभी, ओके? विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? See, current is constant, V is varying, V is equal to V1 plus V2 plus V3. V potential difference क्या है? V1, V2, V3 की एडिशन, राइट? तो देखो अभी कांस्टेंट है करंट, वैरिंग कौन है? जो वैरिंग है उसको क्या करने का? V is equal to IR is equal to I, रेजिस्टेंस कैसे है? 3 है, R1, R2, R3, IR1 plus IR2 plus IR3, राइट? तो V is equal to IR, let's put a value here, राइट? I in bracket R1 plus R2 plus R3, I तो कांस्टेंट है इसलिए इसको कॉमन में निकाले अपन, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई RES, ओके? कॉम्बिनेशन RES इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3, ओके? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। उसका जो उसके साथ है कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो देखो कैसा, कोरिलेटिव स्टडी करो, राइट? जब आप कोरिलेटिव स्टडी करोगे ना तो आपको इजी जाता, राइट? तो अभी इधर इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन करें कि साइमल्टेनियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ लेना, ओके? सी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? R1, R2, R3 ये कैसे पैरेलली कनेक्टेड है, राइट? एक दूसरे को पैरेलल है। तो अक्रॉस दिस R1, R2, R3 वी हैव टू अटैच वोल्टमीटर, राइट? और बैटरी और की तो आपको पता है। तो नेक्स्ट, एज सुन एज यू आर सप्लाइंग द voltage or source of energy across this battery or through this battery, the current will be generated here, right? Potential difference also generated, we can measure this potential difference across the R1, R2, R3 by V, right? तो देखो V क्या है? अभी कांस्टेंट है, क्यों? R1, R2, R3 तीनों को मिलाकर एक ही अटैच किया ना, दैट इज व्हाट, दिस इज आवर मेन कंसेप्ट। V जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कितना हो रहा है वो अपन काउंट करते, तो R1, R2, R3 के अक्रॉस जो हो रहा है वो अपन V के जरिए से कैलकुलेट कर सकते, राइट? तो देखो V क्या है? अपना कांस्टेंट है,
आई क्या है, चेंजिंग है, करंट चेंज हो जाएगा, R1 R2 R3 तीन है ना रेजिस्टेंसेस, ओके। तो V इज इक्वल टू IR, सेम। चेंजिंग कौन हो रहा है, I। जो चेंजिंग हो रहा है उसको अपन लेफ्ट साइड पे लेने का, ओके। ये अभी याद रखो, जब आप एक्सप्रेशन उसको मींस स्टडी करते ना तो आपको कंफ्यूज होता रहता है कि V इज इक्वल टू IR है, लेफ्ट साइड में कौन सा ले, राइट साइड में कौन सा ले, तो उसका कंसेप्ट याद रखो, जो चेंजिंग है उसको अपने को एक साइड में लेने का, राइट। I इज इक्वल टू V बाय R, राइट। I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I क्या है, चेंजिंग है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज I1 I2 R3, राइट, I3। I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by R3, and let's put up the equations. V by RP, RP क्यों है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसीलिए, V by R1 plus V by R2 plus V by R3 is equal to, फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलता है आपको, 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, right? This is the expression which is generally asked for 5 marks, right? Let's write this all the expression. You have to understand this expression and recall that, right? Let's write fast. इसमें देखो, just now we have seen this is the resistance in parallel, okay? तो RP जो है, RP क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल है। रेजिस्टेंस ये जो इन पैरेलल है उसकी वैल्यू ये क्या आती, लेस देन R1, लेस देन R2, लेस देन ये RP है, राइट। ये क्या है, लेस देन R3, ओके। मींस इसका जो रिजल्टेंट आता है वो इंडिविजुअल से भी कम होता है। RP इज लेस देन R1, RP इज लेस देन R2, RP इज लेस देन R3। ये कंसेप्ट आपको लग रहे हैं, मगर ये कंसेप्ट जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत क्रूशियल है, राइट। These concepts are very crucial for your National Science Olympiad exam, like in 11th 12th also NEET JEE, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, 11th 12th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये तो आपका बेसिक है, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, राइट। सी दिस इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन R1, लेस देन R2, लेस देन R3, समझ में आया। तो रेजिस्टिविटी किसे बोलती है अपन, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। मींस जो रेजिस्टिविटी आपकी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, राइट। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। समझा अभी इतना। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे अपन, न्यूमेरिकल से। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में देखो साइमल्टेनियसली टेक्स्ट बुक के साथ चलते जाओ। अभी आपको न्यूमेरिकल्स दे रहे, वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल्स, ओके, राइट। चलो गेट रेडी फॉर न्यूमेरिकल्स। अभी आपने बेसिक हो गया, अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, राइट। तो अभी देखो, हाँ देखो अभी इसमें अपन पॉइंट्स लर्न करें। अभी आपको क्या देखना है, न्यूमेरिकल्स देखना है, राइट ना। न्यूमेरिकल्स में आपको टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स दिए, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स में क्या है देखो एक बार, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर 6 ohm if we reduce the length of the wire to 70 centimeter, what is the resistance B? रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, राइट। तो अभी देखो क्या क्या दिया है उसमें, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर, कितना मीटर है लॉन्ग वायर, 1 मीटर। तो देखो L1 इज इक्वल टू कितना है, 1 मीटर। यू कैन राइट इट एज 100 सेंटीमीटर ऑल्सो, राइट। तो नेक्स्ट क्या दिया है, 1 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर 6 ओम, रेजिस्टेंस कितना है, R1 इज इक्वल टू 6 ओम, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है, इट्स लेंथ रिड्यूस्ड टू 70 सेंटीमीटर, लेंथ कितना रिड्यूस किया, L2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस B, R2 निकालना है आपको, राइट। आपको पता है ये वायर है, अगर समझो जस्ट नाउ वी हैव सीन, पहले मैं अभी बोला ना आपको पढ़ाते टाइम, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहता है, राइट। तो लेंथ कितनी है, देखो लेंथ कितनी है, पहले 100, नेक्स्ट कितनी है 70, और आपको रेजिस्टेंस 1 दिया है, रेजिस्टेंस सेकंड कैलकुलेट करना है। इनडायरेक्टली क्या आता है इसका, इसके ऊपर से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, राइट। तो R1 बाय R2 ओके इज इक्वल टू, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, राइट। तो इसको अपन कैसा लिख सकते, R1 बाय L1 इज इक्वल टू R2 बाय L2। लेट्स पुट अप द वैल्यू हियर, ओके। इसकी वैल्यू पुट अप करो, क्या है R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है, 6 है,
R1 की वैल्यू 6, राइट। L1 कितना है? L1 है 100, राइट। नेक्स्ट क्या है अभी? नेक्स्ट क्या है? इज इक्वल टू, इसमें R2 की वैल्यू क्या दी है आपको? R2 हो गया, सॉरी R1 6 ओम है, L1 100 है, और आपको R2 क्या दिया है? कैलकुलेट करना है, राइट। L2 कितना दिया है? 70 सेंटीमीटर। तो अभी कैलकुलेट करो, वेरी इजी। सी, आई विल कैलकुलेट हियर, राइट। R2 is equal to 6 into cross multiply only, nothing else, right? Fast, keep it up. 6 into 70 divided by 100. इसको कैंसिल कर दो। 6 7 जा 42, 42 by 10, 4.2 ओहम, क्योंकि रेजिस्टेंस है आपका, राइट। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है, समझा? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, राइट। तो आपको क्या दिया है? L1 दिया है, R1 दिया है, L2 दिया है, आपको ऑब्वियसली R2 निकालना है, तो वो रिलेशन से निकालो, राइट। वेरी इजी, सॉल्व इट, राइट डाउन इन योर नोटबुक, फास्ट, कीप इट अप। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको? इफ अ चार्ज ऑफ 420 कूलम, चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू 420 कूलम, राइट। फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर इन 5 मिनट्स, टाइम कितना दिया है? 5 मिनट्स दिया है टाइम। 5 मिनट्स बोले तो 5 into 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड, राइट। और बाद में क्या दिया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, आपको क्या निकालना है? करंट, ओके। आपको पता है Q इज इक्वल टू IT, ये फार्मूला पता है। वैल्यू किसकी निकालना है? जिसकी वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट साइड में लेने का, I की वैल्यू निकालना है। I इज इक्वल टू Q बाई T, राइट। Q कितना दिया है? 420 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है? 300, 0 0 कैंसिल, ओके। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 7 बाय 5 कितना है? 1 पॉइंट कितना है? कैलकुलेट करो फास्ट, कैलकुलेट इट फास्ट। 5 1 जा 5, राइट। पॉइंट कितने आ गए? 2, 20 हो गए। 5 4 जा कितना होगा? 5 4 जा 20, राइट। एम्पियर मीन्स आपका करंट क्या है? 1.4 एम्पियर, समझा? दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज आस्क फॉर 2 to 3 मार्क्स, राइट। ये मार्क्स आपके पॉकेट में रहना चाहिए अभी, फिक्स, ओके। कीप इट अप फास्ट। राइट डाउन फास्ट, ओके। स्टूडेंट्स, इतना आज के लिए अपन देखेंगे, राइट। इसके नेक्स्ट पॉइंट जो है अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू recollect as early as you can. Our batches will be fixed, our schedule will be fixed, right? We have started our mathematics lecture also, you know that, right? Our live sessions will be starting, okay, very soon. Our live sessions or doubt clarifications also we will start, right? If you have any doubt, please mention in your comment box, okay, right. Recollect as much as early you can. Suggest, if you likes our platform, suggest your friend, suggest your relatives, and gather together, right. We will start our journey, okay. Thank you all of you once again. Thank you, bye bye.